Okay, good morning, students. How are you? I hoping that you all are doing the study properly at home. And you know that I already informed you about the Unit 3rd exam because this exam will be held online exam, not will be offline. So, and you had done the question answers chapters because 3 chapters I have given you, and you already mention the syllabus also in your notebook, so you will follow, and those questions you will again and again repeat, and ready for this exam because 3rd of February your exam will be start. So today again I am going to start the revise the chapter making the national movement 1817 and 1947. Maybe this chapter is coming in the exam, right? So question number first is, why were the people dissatisfied with the British rule in 1870 and to 1880? 1870 और 1870 और 80 में यानी 17 एंड 18 डेकेड में लोग सेटिस्फाइड नहीं थे ब्रिटिश रूल से। कारण क्या था? इसमें कारण ये था कि देयर वॉज द ग्रेट dissatisfaction with the British rule in the 1870s to 1880. Some of the reasons for this dissatisfaction are as follow. Number one, the Arms Act passed in 1878. This act disallowed Indians from possessing arms. Next, the Vernacular Press Act in 1878. This act was aimed at the silencing those who were critical of the government. Under this act, the government could confiscate the assets of the newspaper if they published anything that was found objectionable. The Leavitt Bill controversy in 1883, the government tried introducing the Leavitt Bill, and this bill provided for the trial of the British or European individual by the Indians and sought equality between the British and the Indian judges in the country. However, the whilst oppositions forced to the government to withdraw the bill, and this enraged the Indians further. So these important rules they were passed, the Britishers passed for Indian, and so that is why the Indian peoples were not satisfied in these rules in that time the passed by the Britishers. Who did the Indian National Congress wish to speak for? Who did the Indian National Congress wish to speak for? The Indian National Congress wished to speak for all the peoples of India, irrespective of the classes, color, caste, creeds, language, or the gender. It stated that India, its resources and systems were not
of any one classes or communities of India, but of all the different communities of India. Next question, what economic impact did the First World War have no Indians? See this. The First World War led to huge rise in the defense expenditures of the government of India. The government in the turn increases taxes on the individual incomes and business profit, increase the military expenditures, and the demand of the war supplies led to the sharp rises in the pieces which are created are great difficult for the common people. On the other hand, business groups repeat fabulous profiles from the war. The war created a demand for the individual industrial goods such as the jute, bag, cloth, and rail, and caused by the decline in the import from other countries into the India. As the result, Indian industries expanded during the war. What did the Muslim League resolution of the 1940 ask for? The Muslim League resolution of 1940 asked for the independent state for Muslim in the north, west and east area of the country. 1940 में जो मुस्लिम लीग का जो एक नया रूल बना, उसमें उन्होंने जो कम्युनिटी ने डिमांड किया कि भाई हमारा एक अलग स्टेट होना चाहिए, जो एक स्टेट एक जगह हमको, हमारा राज्य नॉर्थ और वेस्ट और दूसरा हमारा ईस्टर्न एरिया में जहां पर हमारी बहुत ही मेजोरिटी के लोग हैं, वो हमारा अलग कर दिया जाना चाहिए. ये डिमांड थी, ये उनकी डिमांड थी मुस्लिम लीग की. ये डिमांड उन्होंने उठाई, ये आवाज उन्होंने 1940 में इसको उठाया गया. Who were the moderates? How did they propose to the struggle against the British? हमारे जो लीडर्स थे भारत के, उन्होंने किस तरीके से जो संघर्ष किया देश को बचाने के लिए, ब्रिटिश सरकार के कुछ मनचाहे रूल्स बनाने के बाद देश को खत्म करने के लिए, या देश में जो करप्शन बढ़ा उसको खत्म करने के लिए कुछ हमारे नए लीडर्स भारत के, उन्होंने एक आवाज उठाई और उनका उद्देश्य था कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे. इन द फर्स्ट 20 years of the existence, the Congress was moderate in the objective of method. The Congress leaders of this period were called the moderate. उसमें कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ और उस कांग्रेस पार्टी में कुछ जो लीडर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट कुछ आवाज उठाई और वही लीडर्स मॉडरेट लीडर्स के नाम से जाने गए. द कांग्रेस दे प्रपोज टू द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन द नॉन वायलेंस. उन्होंने अहिंसा का पालन करते हुए उस रूल के खिलाफ आवाज उठाई और उससे लड़ने का बीड़ा उठाया. मैनर्स which are the radicals called the politics of petitions. They wanted to develop the public awareness. वो समाज में, जनता में जागरूक करना चाह रहे थे कि जनता को जागरूक करके उनके अंदर देशभक्ति की भावना भर दी जाए, जिससे कि वो आगे चलकर
देश के प्रति एक अपने को समर्पित करने के लिए तत्पर हो जाएं। अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, एंड दे पब्लिश्ड on newspaper, wrote the articles and showed how to British rule was the leading to the economic rulers of the country, and they criticized British rule in their speech and send respectives to the different part of the country to mobilize public opinion. They felt that British had the respect for the ideals of the freedom and justice, and so would respect the just demands of Indians. How was the politics of the radicals within the Congress different from that of the moderate? The radicals were opposed to the policies of prayers followed by the moderate within the Congress, and they explored more radical objectives and methods. They emphasized the importance of the self-reliance and the constructive work. They urged that people must be rely on their own strength, not on the good nationalist intentions of the government, as was the stated policies of the moderates. They believed that the people must be fight for the स्वराज. उनको विश्वास हुआ कि जो हमारा अभियान है, जो हमारा अवेयरनेस है, उससे लोगों में अवेयरनेस यानी जागरूकता आएगी और लोग अपने स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार, हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार है यानी हमारा देश, हमारा भारत, हमारी धरती, ये भावनाएं उनके अंदर होंगी तो वो एक दिन अपने देश के लिए लड़ेंगे. तो जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने केवल हमारे देश की जनता को स्पार्किंग दिया, यानी केवल एक चिंगारी पैदा की. लोगों को पता नहीं था, देश प्रेम की भावना उनके अंदर नहीं थी, उनके अंदर स्वराज्य की फीलिंग्स नहीं थी. वो केवल और केवल जागरूक नहीं थे, वो केवल उनके अंडर काम करते थे, अपना पेट भरते थे. मजदूर वर्ग के लोग बहुत ही लेबर करते थे और ब्रिटिश के लोग उनसे बेहद काम कराकर उनका शोषण किया करते थे. तो जो जागरूक लोग थे, कुछ क्वालिफाइड लोग थे, कुछ हमारे लीडर्स थे, उनको ये चीज बिल्कुल गवारा लगी और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई. एक पार्टी जो हमारी कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उसके कुछ लीडर्स थे, उन्होंने दिल खोलकर आवाज को उठाया और उसको लोगों को जागरूक किया कि भाई अपने देश के बारे में जागो, क्यों आप अपने देश के खुद अपने देश के लिए मरो, अपने देश में काम करो और अपने देश के लोग दूसरे जो विदेशियों के शासकों के ऑर्डर पर आप इतना लेबर करते हो और सारा जो बेनिफिट है वो फॉरेन चला जाता है, इससे बेटर है इतनी मेहनत अपने देश के लिए करोगे तो एक दिन हमारा देश सर्वोपरि होगा, दुनिया का सबसे ऊंचा देश माना जाएगा. इसके बाद आता है डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टुक इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. हाउ डिड द पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी? ड्यूरिंग द 1921 and 1922 the non cooperation movement gained मोमेंटम. उसके बाद हमारा देश के जो लीडर्स थे उनका मोमेंटम जो था 1921 और 22 में एक नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन चलाया गया और उस असहयोग आंदोलन में क्या हुआ
कि thousands of students left the government control school and colleges. हजारों जो हमारे छात्र थे उन्होंने अपने उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जंप किया। जंप किया और जंप करने के बाद, बेटा डोंट टॉक हियर, और सारे रूल्स रेगुलेशन को छोड़कर कंट्रोल करके स्कूल, यानी थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल, और हजारों स्टूडेंटों ने उसमें जो स्टडी कर रहे थे ब्रिटिश स्कूलों में, उन्होंने उनके रूल्स रेगुलेशन को तोड़ दिया और कॉलेज छोड़ दिया। मैनी लॉयर्स गिव अप द प्रैक्टिस, बहुत से वकीलों ने जो कोर्ट में वकालत कर रहे थे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने अपनी वकालत को छोड़ दिया। ब्रिटिश टिटलेस वर सरेंडर्ड। लेजिस्लेचर वर बॉयकॉटेड, जो वहां की विधान परिषद थी और विधानसभा, लोकसभा, जिसने बॉयकॉट, उसका विरोध करना शुरू कर दिया सरकार का। यानी अब पूरी तौर से हर एक स्थान पर जो सरकार का बायकॉट शुरू हो गया था। कब? 1921 और 22 में, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो उसमें भाई साहब देश के बहुत से लोग, पढ़े लिखे लोग, वकील, वहां की सरकार, एमएलए, विधायक, ये जितने हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी, नेतागण जितने भी थे, उसका बायकॉट करना शुरू कर दिया। इन द मोस्ट केसेस द कॉल्स ऑफ फॉर द नॉन कॉपरेशन वर रिलेटेड टू द लोकल ग्रीवेंसेस। इन खेड़ा, गुजरात, पाटीदार peasants organized non-violent campaign against the high land revenue demand the British। और वहां पर जो खेड़ा एक नाम स्थान है गुजरात में, जहां के पाटीदार किसान जमींदार थे, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। किसके? जो बहुत ज्यादा लगान मजदूरों से, यानी अपनी लगान, अपनी लैंड टैक्स के अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया। कहां? सबसे पहले खेड़ा में, गुजरात में। जो पाटीधर जमींदार हुआ करते थे, वहां पर पाटीधर नाम के जमींदार हुआ करते थे, जो वहां के जमींदारों को पाटीधर कहा जाता था। इन द कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु एंड लिक्वायर शॉप्स वर पिकेटेड, और वहां पर कुछ आंध्रा के कुछ ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी इसके खिलाफ अभियान उठा दिया। इन द गंटूर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, ट्राइबल्स एंड पुअर पीसेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द colonial states for the restricting their uses of the forest resources, and they stacked a number of forests and satyagrahs, and sometimes the sending their cattle into the forest without paying grazing fees. जो वहां के ट्राइबल्स थे, did not allow to send the cattle in the forest for grazing without any permission of British rule। सबसे पहले क्या होता था कि जो गंटूर डिस्ट्रिक्ट के कुछ आंध्र प्रदेश के पूर्व किसान, मजदूर और कुछ चरवाहे लोग थे, वो अपने जानवरों को बिना गवर्नमेंट की परमिशन से खुला चराने के लिए अलाउड नहीं होते थे। लेकिन अब क्या था, जब ये आवाज उठने लगी तो वहां के चरवाहों ने भी अपने जानवरों को खुला जंगलों में छोड़ दिया और कहा कि चलो, अब वो सरकार से कोई भी परमिशन गवर्नमेंट से नहीं लेते थे और अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। इधर पंजाब में भी द अकाली एजिनेशंस ऑफ द अकाली दल ऑफ द सिख shouted to the remove contempt of the महंत, supported to the British from their gurdwaras
In Assam tea garden, laborers demand to the big increase in their wages. अब क्या हुआ, आसाम में तो सबसे बड़ा उत्पादन अंग्रेजों का था, अंग्रेजों का सबसे ग्रेट जो प्रोडक्शन था वो आसाम से था, क्योंकि उनको चाय उनकी बहुत महंगी बिकती थी और आसाम ही उनका गढ़ था, जो एक इकोनॉमिक सेंटर कहा जाता था आसाम। वहाँ के जो मजदूर वर्ग थे उन्होंने भी आवाज उठाई कि हमारी पेमेंट बढ़ाई जाए, हम चाय के बागानों में काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपना प्लांटेशन खत्म करना शुरू कर दिया, काम करना बंद कर दिया। नेक्स्ट, द पीपल थॉट द गांधी जी एज अ message someone who could help them overcome their misery and poverty. Peasants believed that would help them in their fight against the jamidars, while the agricultural laborers felt that the would provide them with the land. तो इस प्रकार 1921 एंड 22 में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और विभिन्न राज्यों में के लोगों ने, विभिन्न ग्रुप के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक द साल्ट लॉ? साल्ट लॉ को क्यों तोड़ा? इसके बाद डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया एंड दिस क्वेश्चन। तो दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमंग दीज टू क्वेश्चंस आई थिंक दैट्स वन हु साइड दिस क्वेश्चन यू नॉट डिडंट राइट इन योर नोटबुक, व्हाई डिड गांधी जी चूज द ब्रेक द साल्ट लॉ? साल्ट लॉ, नमक कानून को गांधी जी ने क्यों तोड़ा? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ही वन हु नॉट डन तो प्लीज राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।